You think the media industry really likes me? Bullshit. मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रगल रहा ही नहीं। आज लोग सोचते हैं कि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट नंबर्स। हर कोई एक्सक्लूसिव कर रहा है, हर कोई नंबर 1 चैनल है, कोई फर्क नहीं है। सेंसिटिविटी एंड मीडिया, बार और ग्राफ किधर जा रहा है? जो भी काइंड होता है लोगों को लगता है कि वो फेक कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को देख के ही मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया एज अ जर्नलिस्ट। वन कॉमन ट्रेट दैट यू फाइंड इन एवरीवन। अब मेरे में एक प्रॉब्लम ये है, मेरे में ना लॉयल्टी कूट के भरी है। जिनसे दोस्ती मत करना वरना फायदे की ही न्यूज़ छापेंगे। एक या दो स्टार्क डिफरेंस के भैया, ये तो ऐसे मिलेनियल्स हैं, ऐसे जेनजीज हैं। Gen Z's have a very different language. सब बोलते हैं कि we shouldn't care about trolls, but ये जो एक्टर्स ने इंटरव्यूज कम कर दिए ना, वो उनका ही सोच के कम किया। And I think producers के बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। It's a fact. कितने भी प्रताड़ित किए गए हो, तो ऐसे कोई 2-3 मोमेंट है that you still regret today? हाँ, बहुत सारे। तो बता दो। आपने गेस हु वाले वीडियोस देखे? You wanted a masala or controversy to be automatically spilled and you played it smart. जब मुझे मसाला चाहिए होता है तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। जिंदगी में प्यार बहुत है, मोहब्बत बिल्कुल नहीं। Welcome back to my happy space of किसी ने बताया नहीं, the secret to a happy life. We are back with brand new season of किसी ने बताया नहीं. So please welcome creator of the global icon, Dr. Madhu Chopra, renowned pediatrician and nanotologist, Dr. Imran Patel, melodic soul, a C-score, charismatic life coach, Jay Madan, eminent oncologist, Dr. Sevanti Limay, serene mentor, Hansaji Yogendra, trailblazing journalist, Nayandeep Rakshit, and many more. One thing that you are very proud of. मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे ऐसा प्रेइंग इज एन आर्ट एंड दैट आर्ट यू लर्न ओनली व्हेन यू सरेंडर। कोई एक ऐसा लाइफ जो मुझे इंस्पायर करता है, मिस्टर संजय दत्त। One secret that you have followed in your own life. माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों का ध्यान रखना होगा। Want you to spill the beans. साबु लगाया, पानी लिया और साबु धो लिया, उसको बात नहीं बोलते। I am very interested. मुझे भी जानना है। माफ करो, मैं डॉक्टर ही हूँ। You think the media industry really likes me? Hi my beautiful people, welcome back to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं, the secret to a happy life. This is my happy space where I bring in lots and lots of guests from different walks of life, sharing their experience, wisdom with all of us, and we take back a happy smile and some tools to create happiness in our lives. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a celebrated entertainment journalist, very beautiful, calming and charming personality. He is a soul जिनके साथ interact करके मैंने एक connection बनाया है. From the red carpet to the interviews, his wit, authenticity and charm has taken it to another level of journalism. And I have had the great good fortune of knowing him through my interview sessions, and now on the conversation of the flip side, he is going to sit and talk about and share a lot of stuff with us. Please welcome Nayandeep Rakshit. Thank you so much, Rubina. I am so happy, Nayandeep. Rubina, I can't tell you that I am possibly the happiest because you're right. मैंने ना आपको पहले बार बिग बॉस के टाइम हमने एक जूम कॉल पे हमने एक इंटरव्यू किया था, हमारा पहला कॉन्वर्सेशन था और मैंने कॉन्वर्सेशन करके ही मैंने भावना को बोला था तभी, बिकॉज भावना न्यू यू पर्सनली, आई सेड दैट यू नो दे आर सच अ नाइस कपल, आई होप दे विन इट। एंड थ्रू आउट द शो जब आपकी पर्सनैलिटी आई थी तो उससे मैंने बहुत रिलेट किया है, बिकॉज मैं भी ऐसा ही हूँ इन अ लॉट ऑफ वेज। जब मुझे जो मेरे दिल दिमाग में होता है मैं बोल देता हूँ। एंड व्हेन after that, when we had that conversation, I remember it was one of the, I still say that it is one of the best conversations I've had. मैंने आज भी वो स्टोरी डाली है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ बात करने जा रहा हूँ जो जिनके साथ मैंने बहुत सारे fabulous conversations किए हैं. And thank you because you know it's not about the conversations, but after that day I remember कि जब भी मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ी है या मैंने एक मैसेज किया है कि रुबीना यू नो वी नीड टू डू दिस और वी शुड डू दिस एंड मेरे को ये मदद चाहिए एंड यू ऑलवेज बीन देयर. सो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता दैट एन एक्टर एंड अ जर्नलिस्ट रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट that it can go much beyond. And I feel that emotional connect with you always. Thank you so much. Thank you so much. As I mentioned ना कि हमने personally भी उसके बाद we have touched base That's so true. many times, and I have genuinely felt that you are a gem of a person, and I really
hope and pray that you just rise and shine, because souls like you, they bring in so much of joy, and with this conversation, you know, the secret to a happy life. Absolutely. So I want to know your one secret to begin this conversation. What is your one secret to create a happy life? To create a happy life, to be content. मेरी मम्मी हमेशा बचपन से सिखाई है मुझे और मेरे भाई को, मेरे मम्मी पापा दोनों। मुझे किसी ने बोला कि टुडे वी वांट टू नो अबाउट योर स्ट्रगल्स, जब मैंने यहाँ बात, मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रगल रहा ही नहीं है। मतलब बॉम्बे आने के बाद अकेला रहना वाज द स्ट्रगल, बट उसके पहले कभी स्ट्रगल नहीं रहा है। मतलब स्ट्रगल रहा भी होगा तो मुझे कभी किसी ने महसूस नहीं कराया। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती है, सो देयर वाज दिस इंसिडेंट, ओके, मेरा रिलेटिव्स के साथ उतना अच्छा रिलेशन कभी नहीं रहा है, एंड वी कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे रिलेटिव्स को हमारे मम्मी पापा बहुत वैल्यू देते हैं कि नहीं, जो भी बुरा किया है उसको भूल के उनको माफ बड़े कर दो। हैं, हाँ, मतलब उनके साथ रहना है अच्छे से। तो मैंने कभी मेरे साथ ये कभी, आई वॉज नेवर ओके विद दैट। मैंने अपने रिलेटिव्स को, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई को बहुत धोखा देते हुए देखा है। और मेरे भाई मेरे से 10 साल बड़े हैं, तो ऑफ कोर्स बाय द टाइम आई वाज 12 13 आई हैव सीन that people have not been nice to them, and I still feel you can be bad to me, I'll still forgive you, but अगर आप मेरे मम्मी पापा भाई इनसे आपने बदतमीजी कर दी तो मैं जिंदगी में आपको कभी माफ नहीं करूँगा। तो उस मोमेंट पे ऐसा था जहाँ पे मेरे एक रिलेटिव ने मेरे पापा के कुछ पैसे, बहुत सारा पैसा एक्चुअली दिया नहीं था। और जब बहुत क्लोज रिलेटिव, आई डोंट वांट टू इवन से कि रिश्ता क्या था, तो मेरे पापा को उन्होंने बोला था कि तू दूसरी बार मांगने आया तो मैं तुझे जेल कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल दूंगा। ऐसा हुआ है। एंड उसके कुछ महीने बाद, लाइक कर्मा हैज इट, ही वाज जेल्ड, एंड नॉट माय फादर, yes. एंड मेरे पापा जाके उनको छुड़ा के लेके आए। तो मैंने ना 11 साल 12 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने पापा को सवाल किया था, मम्मी पापा दोनों थे, कि आपने ये क्यों किया? जो हमारे साथ बुरा करता है, मैं नहीं बोल रहा कि आप बुरा करो, बट अच्छा भी क्यों ही करना। तो मेरे पापा ने एक चीज बोली थी, और दे वर वेरी रिच, ओके, मच रिचर एंड मच मोर फाइनेंशियली स्टेबल देन वी एवर वर। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि वो लोग बिरयानी खाएंगे घर पे, बट वो ना अपने में ही खुश नहीं है, बट हम लोग अगर नून और भात भी खाएंगे ना तो हम लोग चारों खुशी से खाते हैं। सो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज है जहाँ पे आई फील लाइक इफ इन लाइफ रुबीना, यू हैव अचीव्ड सो मच, बट अगर आप किसी और के साथ कंपेयर करोगे ना अपने आप को, जो आपको लगता है कि आपसे आगे, आपसे ज्यादा अचीव कर रहा है, तो आप कभी अपने अचीवमेंट पे खुश नहीं होंगे। वैसे ही आप अगर अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करोगे जो आपसे थोड़ा सा नीचे होगा अचीवमेंट के हिसाब से, तो आप बहुत खुश होगे। तो मेरा ये है कि मुझे कंपेयर ही नहीं करनी है। मैं देखता हूँ कि मेरा ये गोल है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज करनी है लाइफ में, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। अगर मैं पहुंच गया तो वेरी वेल, नहीं पहुंचा तो थोड़ा मतलब रिग्रेट होता है, दुख होता है, ऐसा नहीं है, आई एम ह्यूमन इनफ। बट मेरी मम्मी बोलती है कि जो है उसमें खुश रहो, देन यू विल बी हैप्पी forever. If you feel like, if you keep comparing to somebody, then you will never be happy. Nobody will be happy. If Shah Rukh Khan also keeps comparing himself to somebody who might be bigger than him in his own knowledge and in his own mind, he will not be happy. He will not be a happy Shah Rukh Khan. So I feel that is the secret. Wonderful. And it is like a secret to be kept and applied in everybody's life, I believe. Then you have interviewed almost who's who, from the Bollywood to television to, I think, the broadest spectrum. Yeah. Do you feel celebrities come with a facade when they sit in the interview, or they are who they are? Some of them do. Some of them come with a facade. It's not a facade. अभी के ज़माने में ऐसा हो गया है, अभी especially this generation of Bollywood actors especially, उनको ना एक पेडिग्री ऐसा है कि उनके आजू बाजू के लोग उनको बोल देते कि ये आप बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मत बोलो, ऐसे ही बोलो। फेड कॉन्वर्सेशन है। हाँ, मतलब कुछ लोगों का है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम 90s के बच्चे हैं, अभी भी आप 90s के किसी भी हीरो हीरोइन से बात करो तो वो खुल के ही बात करते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो आप नहीं बोल सकते, राइट? इवन व्हेन आई, बट दैट्स अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी मे बी। सिमिलर, मतलब जो मैंने अभी नहीं बोला कि मेरे पापा के साथ क्या रिश्ता था, इट विल मेक इट वेरी ऑब्वियस, बट आई डिडंट हाइड द स्टोरी। वो क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये स्टोरी भी बोलूंगा तो कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा, एंड ये होता है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि लोग केज्ड आते हैं, एंड एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें ना कॉन्वर्सेशंस अफेक्ट हो गई है। लोग आजकल कॉन्वर्सेशन करना नहीं चाहते। फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग वीडियो जर्नलिज्म, मुझे अभी लगता है कि इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट कि लोगों को बुलाना, कि आप आके एक दिल से दिल की बात करो। उनकी भी पूरी गलती नहीं है, पता है,
मैं मीडिया का होके भी मैं एक चीज सच बताऊं, यू नो दिस, दैट मैं आवाज उठा देता हूँ जब मीडिया कुछ बुरा कर देती है या गलत करती है। अभी क्या हो जाता है कि आपने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया, आपको मेरा इंटेंशन पता है, आपने मेरे साथ बहुत दिल से दिल की बातें कर ली, बट किसी और मीडिया वाले ने वही स्टोरी को ऐसे चलाया, ऐसे हेडलाइन के साथ, जो बहुत ही मतलब सेंसेशनलाइज करके ये सब होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, प्रॉब्लम वो एक्टर को ये हो जाता है कि यार मैं तुम्हारे साथ कर भी लूं बात, बट बाकी जो 100 लोग हैं वो इसको ऐसे घुमा देंगे, फिर कैसे बात करें। तो मैं उनका भी समझता हूँ, बट इससे मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशंस और रिलेशनशिप्स बहुत अफेक्टेड हो गए। आज के जमाने के रिश्ते पहले के जमाने के जैसे नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी भी नहीं और ऑथेंटिसिटी भी नहीं है। मुझे तो आज के जर्नलिस्ट के लिए बुरा लगता है। मतलब जब मैं 22 साल का था, मुझे 22 से 27 तक तो एक अपॉर्चुनिटी मिली टू कनेक्ट विद पीपल, लाइक इफ वी डिडंट हैव द कन्वर्सेशन देन हमारे बीच में वो कनेक्ट बन ही नहीं पाती। आपको समझ ही नहीं आता होगा कि नयन कैसा होगा ऐसा एज एन इंसान। आज के बंदों को तो वो ऑप्शन ही नहीं है। मैं कितने लोगों को बोलता हूँ जो 25 साल के हैं कि उनको एक्सेस ही नहीं है वो एक्टर्स के पास, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते कुछ, तो वो रिलेशनशिप बनाएंगे कैसे? अगर अच्छे भी होंगे तो पता ही नहीं चलेगा। वो एक प्रॉब्लम तो है। सेंसिटिविटी एंड मीडिया इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, कहाँ है ये बार और ग्राफ, किधर जा रहा है? बहुत ही घटिया हो गया ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मुझे तो लोग, इफ यू गो ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस, मुझे लोग आपने जिन शब्दों के साथ मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि आई एम पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट, I am empathetic as a person. It doesn't have to be an actor. It doesn't have to be a celebrity. Even if it's an animal on the streets, I will be empathetic towards that because वो मेरे नेचर है। हाँ, मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है बचपन से, तो वो मेरे अंदर है। मैं अगर मीडिया वाला नहीं भी होता तो भी मैं ऐसा ही हूँ। अब उन लोगों को तो पता नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि जो भी आज काइंड होता है ना, आज इतना सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी को, नफरत को फैला दिया गया है या एम्पलीफाई किया जाता है कि जो भी काइंड होता है लोगों को लगता है कि वो फेक कर रहा है। लोग ये नहीं सोचते कि जो नेगेटिविटी है वो मेजरली मैन्युफैक्चर्ड हो सकती है। क्योंकि आज बॉट पेजेस क्यों हैं? क्योंकि किसी को ट्रोल करने के लिए आप पैसे देते हो। मतलब ये सोचो कि मतलब जमाना कहाँ आ गया है कि किसी को गिराने के लिए आप पैसे दे रहे हो। आप अपने आप को उठा लो। अब जो बंदा आपके साथ अच्छा बन रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि ये तो हर किसी के साथ अच्छा है, ये तो फेक है, फेक है, फेक है। Too good to be true kind. या और मैं हर किसी के साथ अच्छा नहीं हूँ। I am friendly with everybody, but I am friends with very few. You understand what I'm trying to say? That's a difference, yes. Absolutely. You would know that I am friends with you because I will talk to you beyond work. Yeah. If I don't, there are many, most people who I speak to for work, they work. उनका भी मेरे साथ वैसा। हाँ, मैं उनको अपने शो पे बुला के गाली नहीं दूंगा ना, क्योंकि वो मैं हूँ नहीं। एंड सेंसिटिविटी तो एकदम ही दूर चली गई है। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू डेथ कवरेजेस। कैसे कवर किया गया है? मतलब इज दैट जर्नलिज्म? कौन से जर्नलिज्म के स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अगर किसी की जिंदगी में एक डेथ हुआ है, मतलब किसी के लव्ड वन गुजर गए, उनके सामने कैमरा ऐसे ठूस दो या माइक ऐसे इधर तक ला दो। ये मैंने जहाँ पे भी जर्नलिज्म सीखी है मुझे नहीं सिखाया गया है। जर्नलिज्म की एथिक्स एथिकल है। जर्नलिज्म की एथिक्स फेयरनेस है। फेयरनेस कैन बी पॉजिटिव things also. If you have done the right thing, calling you wrong is not journalism. वो लोग नहीं समझते, क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट नंबर्स। हर कोई एक्सक्लूसिव कर रहा है, हर कोई नंबर 1 चैनल है, हर तो कोई फर्क नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ हाँ, मैं नहीं हूँ भाई, मैं ना नंबर 1 हूँ, ना मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा ही नहीं। आप लोगों को पसंद आया तो वेरी गुड, नहीं पसंद आया तो आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। बट सेंसिटिविटी है ही नहीं। और एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को देख के ही मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आया एज ए जर्नलिस्ट। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जिंदगी में ऐसी जगह पे काम नहीं करूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि मेरे पास पावर नहीं है कि मैं वो कवरेज को ना बोल पाऊं, क्योंकि हर कोई कर रहा था। मतलब न्यूज चैनल्स आप देखोगे तो मतलब बहुत ही बर्बादी का वो टाइम था एकदम। एंड उसके बाद मैंने जो भी कंपनी में काम किया है या फिर मैंने जहाँ पे मैंने ऐसा सोचा है कि नहीं, मैं ऐसे जगह पे ही काम करूंगा जहाँ पे मुझे वो अथॉरिटी मिले कि मैं जिस तरीके का जर्नलिज्म करना चाहता हूँ मैं वो करूंगा। अब उसके बाद अगर लोग ट्रोल करना चाहते हैं, गुड ऑन देम, बिकॉज इन माई heart I know what I am doing. So that, but sensitivity, no, it's sensational everywhere. 70, 80, 90% is. Truly said, it's more sensational. Creativity freedom कितनी बच गई है, रह गई है या अभी भी है for journalism?
है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे तो क्रिएटिविटी और फ्रीडम दोनों है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने पिछले कंपनी में बॉलीवुड बबल में काम किया है, वेयर वी हैव डन दैट कन्वर्सेशन, एंड अभी मैं गलाटा इंडिया बोल के एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, एंड दोनों कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बिकॉज ऑल्सो मेरा पोजिशन भी वो था, मतलब I was heading these two companies. So what was happening is कि लोग मेरी सुनते थे और जो सुनना नहीं चाहते थे उनको भी सुनना पड़ता था, ऐसा बात हो गया। और गलाटा में तो एंड बॉलीवुड बॉबी में दोनों में मुझे स्पेस बहुत दिया था, मुझे कभी जबरदस्ती नहीं की थी कि आप ऐसे करना ही पड़ेगा, और गलाटा में तो बिल्कुल ही नहीं करते, मतलब गलाटा इंडिया इज लाइक माय ओन थिंग, मैंने you know it, yes, after yes, Bollywood bubble I wanted to yes. start my own thing, yes. and मैंने सोचा था कि मैं कोई कंपनी में काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना ही चालू करूंगा, बट इन लोगों ने मुझे ऐसा एक ऑफर दिया जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये तो it's almost I started it from zero, so it is like my own thing. So अगर आप बॉसेस आपके अच्छे हो, कंपनी अच्छी हो ना, जो आपको फोर्स ना करे कि आपके दिल और दिमाग को जो अग्री नहीं है वो करने के लिए जबरदस्ती ना करे, तो आप डेफिनेटली अभी भी क्रिएटिविटी फ्रीडम बहुत है। लुक एट फे डिसूजा, आई लव हर बिकॉज लोग आज जाके शी हैज बीन अ चैनल हेड, मतलब उन्होंने चैनल के लिए काम किया, न्यूज चैनल में कैसा रिपोर्टिंग होता है सबने देखा है, बट उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, तो उन्होंने अपना ही चालू किया। एंड टुडे यू नो इफ फे डिसूजा सेज इट then people believe it because she's fair, she's see she might go wrong here and there also, everybody is human, but majority of the time she's being fair and objective, which is why I love her. You have interviewed so many people and I think you can see through many things in a conversation. One common trait that you find in everyone which they try hard to suppress but it still reflects in their conversation. मुझे लगता है कि अपनी खामियां छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, सब नहीं करते एक्चुअली, बहुत लोग हैं जो बहुत ही ऑनेस्टली अपने बारे में बात करते हैं और बोल भी देते कि ये मेरा मिस्टेक है, ये मेरा मिस्टेक था। अब मेरे में एक प्रॉब्लम ये है, मेरे में ना लॉयल्टी कूट के भरी है। अब अगर इफ आई लाइक यू and there is a person, it has happened in the past where there has been a person sitting opposite me and that person has tried to say something bad about a person I already love, and for example you, now it shows on my face, okay, and then they'll be like, I'm like, but aapne to ye bola, then I start questioning, then because to the audience justify. it will, and the audience will feel that Nayan is getting aggressive, maybe I am, because at that moment I'm feeling I know the truth and you're lying to save your whatever body part, but also the fact is that I am loyal to this person and you should know that I'm not the person you should bitch about this person too, because I feel दोस्ती वो है जहाँ पे आपके एब्सेंस में अगर कोई आपके लिए खड़ा रहे और आपके बारे में कोई चीज़ बुरी बोली जा रही है वो ना सुने, तो उसे दोस्ती कहते हैं। तो और जर्नलिज्म में दोस्ती होती है यार, मतलब ये जो हमने बना के रखा है ना कि जर्नलिस्ट से दोस्ती मत करना वरना फायदे की ही न्यूज़ छापेंगे, दैट्स इट। इट्स वेरी, मतलब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं होता, बट मेरे लिए वो नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत, जैसे आपने बोला, ट्रेट्स ऐसे है कि वही है कि उनको सिखाया जाता है कि ये आप बोलोगे ना तो ट्रोल हो जाओगे, तो वो उस मामले में बात ही नहीं करेंगे। अभी कितना भी आप पॉजिटिवली घुमा फिरा के भी पूछ लो, जो भी इम्पोर्टेंट भी है, सपोज इट्स नॉट लाइक gossip, it's an important conversation, they will not speak, they will just avoid it. So वो but situation ऐसा, you will understand, you are an actor, there are so many things, you know, you and I can talk without the camera rolling, correct, but when the camera is rolling, it's not about me, it's not about them, it's about who's watching there and who will catch what, and then they'll twist it and they'll put it on some other platform. It's crazy. With a decade of conversations that you've had, you have interviewed millennials and now Gen Zs and maybe somewhere, you know, alphas also. Stark difference बताओ कोई एक या दो stark difference के भैया ये तो ऐसे millennials हैं, ऐसे Gen Zs हैं। Gen Zs have a very different language. अच्छा, okay. कभी मुझे समझ ही नहीं आती। I am an old person. People don't realize I'm a 92 born. कभी-कभी I don't relate to what my niece is saying. 92 तो तुम ऐसे बोल रहे हो। Trululu, wululu, WBY. What is that? What about you? Oh,
अच्छा, okay. WYD. Oh my god. What you doing? And now all these things, like, if you give me some time, I'm a smart person, I might get it also, but I will need that time. But they're like, no. I'm like, okay. So ये एक है. I think the stark difference is alphas are not bothered about what media writes about them and how they present it. I don't think Salman Khan even cares. You know, I don't think Shah Rukh Khan even cares. Unless and until you are hitting them at a level where as a human they will get bothered. Of course. But otherwise I feel that they don't care कि मीडिया क्या लिखती है. Then बीच का जो जनरेशन है वो एकदम हमारे जैसे कस्प हो गई है कि वो प्यार वाला हो गया है कि एक टाइम पे किसी को मतलब प्यार एकदम सच्चा टाइप का प्यार, एकदम उम्र भर का प्यार, फिर बीच में आ गए हम जो आधा इधर आधा उधर है, और आज के जमाने में डेटिंग ऐप के जमाने का प्यार जहाँ पे मतलब एक जन से दूसरे जन पे जंप करने में 2 मिनट नहीं लगता. लेफ्ट स्वाइप एंड राइट स्वाइप हो जाता है. तो हम लोग कस्प हो गए ना, तो कस्प वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है कि ये देखें या वो देखें. और ना इधर रिलेट कर पाते पूरा, ना उधर रिलेट कर पाते. मतलब इट इज द वियर्डेस्ट. तो आई थिंक कन्वर्सेशन वाइज आल्सो they want to say the truth. Like Kareena Kapoor, I would say, is from that generation. She speaks her heart out. वो बोल देती है जो उनको ये लगता है, और उनके हाव भाव में भी पता आ जाता है. लोग उनको ट्रोल करते हैं, बट ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, because she is at least being herself. There are so many people. Priyanka Chopra, she's always herself. You cannot troll Priyanka Chopra. You know, she's smart, and she knows how to give it back to you with respect. You know, but then this generation, it's a little bit confused generation. उनको इतने लोगों का नॉइज है ना आजू बाजू में कि उनको यही नहीं पता कि वो अपने लिए ऑथेंटिक रह के अपने पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ अपना पर्सनालिटी दिखाए, या फिर उन सब की सुने जो उनको गाइड करते हैं. क्योंकि अभी मैनेजर्स एंड इन सब का जमाना है, राइट? एंड यू नीड देम आल्सो टू गार्ड यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रोल्स, बिकॉज these people have not seen trolling. Priyanka Chopra and Kareena Kapoor and all these people, Deepika Padukone also till a point, Katrina Kaif, they have seen a zone which had no social media. But all these people, they have gotten into the trolling. Like Ananya Pandey, Janhvi Kapoor, सारा कृति, कियारा, मतलब हर किसी को ट्रोलिंग मिलती है. तापसी, मतलब कुछ भी करो ट्रोल हो जाते हैं, राइट? बट उनमें से भी कुछ लोग हैं जो एकदम ऑथेंटिक होके अपनी चीजें खुल के बोलते हैं, और कुछ लोग हैं उनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि वो कुछ भी बोले उनको ट्रोल किया जाता है. तो एंड आई थिंक कंट्रोल हो गया. वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है. हाँ, है ना, हर चीज को लेकर वो बोलते हैं ना, वॉकिंग ऑन द एगशेल्स. वैसा वाला इज लाइक, यू नो, they get really affected with trolls. Yeah, that is a fact. Even if they say, मुझे तो यही बुरा लगता है कभी-कभी कि किसी को कुछ कह दिया तो सब बोलते हैं कि we shouldn't care about trolls, but ये जो एक्टर्स ने इंटरव्यूज कम कर दिए ना, वो उनका ही सोच के कम किया है कि हम कुछ भी बोले गलत हो जाता है. तो मेरे को कितने एक्टर्स ने एक्चुअली, जो बहुत अच्छे इंसान है, पर उन्होंने मुझे बोला है कि नैन तेरा इंटरव्यू करेंगे ना, तो हमको इंटरव्यू करने में प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी नो कि यू विल नॉट गेट इनटू दैट डायरेक्शन. पर तेरे इंटरव्यू के बाद जिनका इंटरव्यू नहीं होगा ना, वो जानबूझ के हमको गंदा लिखेंगे. तो यू आर लिटरली केयरिंग अबाउट दोज हु आर ऑलरेडी गोइंग टू हर्ट यू, हु आर ऑलरेडी गोइंग टू हार्म यू, एंड इन द बार्गेन गुड पीपल ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड. चक्की में पीसता है ना गुड़. तो वही मुझे कभी-कभी ये बुरा लगता है. आई विल नॉट बी डिसऑनेस्ट अबाउट इट. मुझे कभी-कभी लगता है कि यार why should I face the brunt of what other media people are doing or will do? It's that. What is that one longing or desire जो तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कॉन्वर्सेशन में किसी ना किसी में रहती है? वन लॉन्गिंग, वन डिज़ायर जो हम ऐसे कॉन्वर्सेशन में शायद बोल ना पाए, लेकिन वो होता है ना कि रह कर मुझे मेरी ये बात बतानी थी, बट वो फिर रह गई, मुझे ये मेरी बात बतानी. तो और ये ना हर किसी इंसान में एक बड़ा कॉमन फैक्टर होता है ना, कि मुझे शायद उसको थोड़ा सा शुगर कोट करके मैं बता दूं, बट वो मेरी लॉन्गिंग है, डिज़ायर है, मुझे बोलनी है वो. बट of course, as you said ना, because of this pressure, that pressure, this moral filter, that moral filter, वो रह जाता है. So have you been able to sense that thing? कुछ एक्टर्स का ना, और मुझे लगता है कि ये अगर मैं भी उनके जगह पे होता तो यही होता. Like you and I have come from families where we have seen so much of togetherness. A lot of people actually are not privileged that way. You know, हम लोग privilege बोलते हैं. Privilege is not having a family surname only. Privilege is also having a really happy family. You're talking about happy life. I think happy family is the biggest secret to a happy life. If you have happy people around you,
if your family makes you happy, then you are the happiest. मतलब more than my friends, I feel I will be happier to go, and my friends know it. I would be happier to go on a trip with my parents. मेरे जनरेशन में आधे लोग बोलते हैं ना कि यार पेरेंट्स के साथ ये नहीं कर पाते. मेरे मम्मी पापा को, you have seen, they will try out everything. If one wants to do this, then all 4 of us, 7 of us are doing that. If my niece wants to do something and go into a like those pool of balls, right? Everybody is jumping into that. It's not like nobody is thinking. मतलब very small example. Yes, मुझे yes, लगता है yes. कि अपने फैमिली के बारे में ना लोग हिचकिचाते हैं अपनी सच्चाई बोलने को. A lot of people actually don't have amazing relationships with their parents. And that is a very tricky space. Like, you know, you will hear that in news and everything, but they don't, वो बोल नहीं पाते, because it is also a space where आप कैसे बताओगे, मतलब कोई भी sugar coating will not be enough to salvage that situation. And that You fear can't of speak. judgment will always kill you. Yeah. You want to be there, but it just Yeah. makes you, you know, withdraw yourself back again Yeah. and again. Because they'll be like, अरे अपने मम्मी पापा अपने फैमिली के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, भाई बहन के बारे में, अपने अपनों के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया. बट कभी कभी रिश्ते होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट बिकॉज हमारे नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं हो सकता. तो मुझे लगता है उस मामले में थोड़े लोग हिचकिचाते हैं, बोलना चाहते हैं एक्चुअली, कुछ लोग बोल भी देते हैं, बट अपने तरीके से बोलते हैं, फिर ट्रोल हो जाते हैं. और बोलना चाहते भी है तो मतलब एक वो ग्रे एरिया हो जाता है कि नहीं यार ये बोलेंगे तो मुश्किल है, तो वो आई थिंक, एंड आई थिंक प्रोड्यूसर्स के बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है. It's a fact. बेशक कितने भी प्रताड़ित किए गए हो. अरे बाप रे बाप. You remember that conversation we had? You were so honest. That is why the conversation worked, right? Yeah. But you think you are the only one who had been cheated of money? So many. But there are so many people who will So come and say, many. no, I never faced anything on the set. And I think that is also sole reason of Me Too coming so late after it just happened. Yeah, That's what I feel. yeah, That at that point in time, nobody had the courage to come, talk, Yeah. speak. And when they had courage, I think time went by. it was too late. And it just became a hot boiling, you know, Yeah. hot topic for discussion. And I don't think so that it created that wave of, or maybe a turbulence जो उसका उस वक्त होना चाहिए था, when at the right time the person could have spoken and Yeah. given it back, or maybe वो शायद वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना बन के एक मूवमेंट बन जाता. अरे खुद के ही पैसे हैं, मांगने में मतलब भीख क्यों मांगनी है, मेरे को वो बात है. और मुझे ये था कि यू नो आई हैव सीन दैट जहाँ पे हमको पता है कि द थिंग्स आर नॉट राइट, लाइक दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल. इट्स नॉट अबाउट थिंग्स आर नॉट राइट फ्रॉम बोथ एंड्स. लाइक देयर आर टाइम्स व्हेन people are really not treated, mistreated on a set, and you know about it, okay? And they will still not speak because आजू बाजू की जो लोग है ना वो बोल देते कि अगर तुम बोलोगे you will be termed difficult, तुमको काम मिलना बंद हो जाएगा. Exactly. तो वो लोग कुछ नहीं बोलते उस मामले में, एकदम शांत होके चुपचाप बैठ जाते हैं. तो उसमें क्या होता है, उसमें उनकी तो लॉस होती ही है. आई फील लाइक ऑल द अदर पीपल who want to speak up also get a little scared कि यार इन्होंने भी तो नहीं बोला, अगर हम भी बोलेंगे तो. और जो बोलते हैं वो इतने कम हो जाते हैं because they become the minority. And I'm sorry, in any country, in any space, minorities are not the ones who will ever get the veto power. Yeah. So minorities को क्या हो जाता है कि नहीं इन्होंने बोला ना, यही लोग इतने सारे लोग काम करे, सिर्फ 3 लोगों को कैसे प्रॉब्लम हुआ, वो बात है. बाकी 30 लोग बात नहीं कर रहे. वो कहते हैं ना जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने सहने वाला. वाला. अगर if you're referring to the conversation that Yeah. you and I had, my intention of bringing it was कि मुझसे अगर हिम्मत, मेरी कॉन्वर्सेशन से अगर कोई हिम्मत पाकर Absolutely. अपने लिए भी थोड़ी सी सेफ स्पेस बना सके, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री में जिनके गॉडफादर नहीं है, जिनके ऊपर हाथ नहीं है, अगर वो अपने लिए खड़े ना हो ना, कोई नहीं खड़ा होता. That is true. और इस खड़े होने में, इस जंग में अगर आप डर गए, आप सहम गए, तो आई थिंक कंपटीशन इतना कट थ्रोट है. या फिर यू नो इफ़ यू वांट ट्रू टू योरसेल्फ, इफ़ यू गो एंड स्लीप एवरी नाइट थिंकिंग काश मैं ऐसा कर पाती, काश मुझसे ये बोला जाता, काश ये होता, आई थिंक दैट विल किल यू मोर देन द Yeah. कंपटीशन The आउटसाइड. regret is the worst feeling. I understand. yeah. मैं जब डिसाइड किया था ना कि मैं बॉम्बे आऊंगा, तो मेरे बड़े भाई मेरे से 10 साल बड़े हैं. And my मासी की बेटी, we have grown up to know that this is Didi, so she is the first born, second born is your brother, and I'm the third born. It is not like biological relationships only, right? So
मेरे से वो इतने बड़े हैं 16 years and 10 years, so technically they have pampered me also. तो मैंने जिंदगी में स्पॉइल्ड नहीं रहा, बट मैं पैम्पर्ड बहुत हुआ, तो मेरी जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा हुए नहीं. मेरे भाई ने बहुत गंदे दिन देखे मेरे मम्मी पापा के साथ, फाइनेंशियल बैड डेज. आई हैव नॉट सीन दैट, बट आई टेक दैट एज माई प्रिविलेज दैट यू नो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए घर गाड़ी बंगला ना दिया हो, पर मुझे ना एक कंफर्ट वाली जिंदगी दी है जहाँ पे मुझे किसी भी चीज के लिए मांगनी नहीं पड़ी है. और when I was moving to Mumbai, you were talking about Godfather, so my brother had sat me down and told me only one thing, and आज तक वो मैं बात मानता हूँ. तो मेरे भाई ने बोला था कि देख तुझे लड़ना तो अपने लिए पड़ेगा, क्योंकि हम कितना भी बोल ले कि हम लोग सब साथ है, we are all there for you, but remember that the flight from Kolkata to Mumbai will take you 3 hours and you have to go to the airport 2 hours before. So 5 घंटा तुमको अकेले खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि 5 घंटा तुम अकेले लड़ लो. 5 घंटे के बाद पूरी फौज आ जाएगी तुम्हारे साथ, पूरी फैमिली आके लड़ेगी, बट 5 घंटा तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि तुम अकेले लड़ो. एंड आई फील दैट 5 घंटा वाज दैट थिंग वेयर आई फेल्ट लाइक नो, आई हैव टू फाइट फॉर माई सेल्फ, आई हैव टू फाइट फॉर माई राइट्स, एंड आई हैव नेवर लेट गो ऑफ दैट. मतलब मैं जिंदगी में ये करता हूँ कि मैं गलत हूँ राइट हूँ, मैं फाइट तो करूंगा, क्योंकि मुझे बाद में जाके ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं अगर ये तब बोलता ना तो मेरे लिए शायद ऐसे मोमेंट्स रहे हैं लाइफ में, इसीलिए अब नहीं चाहता कि वो हो. लाइक यू ऑल्सो मस्ट हैव फेल्ट कि तब बोलते तो शायद कुछ हो भी पाता, बट ऑफ कोर्स यू कुडंट से इट देन, बट you don't want other people to feel voiceless. Absolutely. You spoke about moment. तो ऐसे कोई 2-3 मोमेंट है that you still regret today? हाँ, बहुत सारे. बहुत सारे. अच्छा, 2 बता दो. 2-3. एक मोमेंट ऐसा था जहाँ पे मैं एक न्यूज़पेपर के लिए काम करता था, और बहुत ही बड़े एक एक्टर ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की थी. उनकी फिल्म का प्रमोशन था और मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, और हिंदी फिल्म था उनका. एक्चुअली वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से तभी थे नहीं, बहुत कम फिल्में की थी. और उन्होंने मुझे बहुत गंदे तरीके से बात किया था, जबकि मैंने उनको 8-10 सवाल उनके मूवी के बारे में किया. मैंने आपको अगर पूछा है कि आपके कोस्टार के साथ आपको काम करके कैसा लगा, यू शुड गो एंड आस्क माय कोस्टार. दीज आर द आंसर्स. अभी क्या हो गया, 3 मिनट में मेरा सारा सवाल खत्म हो गया मूवी के बारे में. अब मैं क्या करूं? तो मैंने ना नॉर्मल सवाल करना चालू कर दिया कि ओ आज तो देखो रीजनल फिल्म्स और इसके बीच में गैप ब्रिज हो रहा है, ये हो रहा है. उसमें उन्होंने आंसर दिया थ्रू आउट द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू से पहले पीआर ने बोला था, पीआर मेरी दोस्ती, कि यू आर गोना एंजॉय दिस इंटरव्यू, ही इज वेरी गुड एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दे डिडंट नो दिस साइड ऑफ द मीडिया, ओनली मुंबई मीडिया. तो आफ्टर द इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू ऑल्सो उन्होंने ना जूस मंगाई थी, और जूस ऐसा आया हुआ है बंदा, वो वहाँ पे खड़ा है. अब वो बात कर रहे हैं तो वो आ नहीं पा रहे. In between the interview, he has spoken to that poor guy so badly. मतलब सिर्फ गाली देना बाकी था, मतलब टोन वही था. And then he got really scared and he kept the juice and everything, and juice पिक ये कैसा जूस है. It's part of that interview, okay? And the interview is over. उनका जिंदगी में तब एक controversial चीज चल रही थी. I swear to God, you know me now. I was the same person. I didn't ask about the controversy. I said you have signed up for this, but उनकी फैमिली ने एक ओपन लेटर लिखा था, और बहुत इमोशनल ओपन लेटर लिखा था, जहाँ पे उनकी फैमिली बोल रही थी कि कितना वो अफेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ दिस व्हाटएवर रबिश थिंग वाज सेड अबाउट हिम विदाउट प्रूफ एक्चुअली. तो उनको बुरा लग रहा था, जैसे होता है फैमिली. तो फैमिली ने वो लिखा था, तो मुझे भी लगा था कि यार मतलब फैमिली तक बात पहुंच गई. तो मैंने बोला था कि यू एज एन एक्टर हैव साइंड अप फॉर दिस, बट डज इट अफेक्ट यू व्हेन योर फैमिली, it affects your family so much. मतलब you know you can handle it, but your mother tomorrow if she gets affected with a story written about you, will get more affected. तो मैंने ये लेवल से पूछा था, कोई गंदे तरीके से नहीं. He answered. It was not that he didn't answer. He answered. और वो घूम के PR को बोल रहा है, and you said I'm gonna like this interview in front of me. You didn't even, buddy, you didn't even ask me one question about the movie. We have come here to promote the movie. And his manager was sitting. अब देखो, आप ललकारोगे तो उंगली करोगे तो आप बड़े सुपरस्टार अपने घर पे, आप झूठ मत बोलो. मैनेजर वहीं पे बैठी थी, मैंने यहाँ पे एक्टर बैठा, मैंने बोला कि आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई रिपीटेड ऑल द 10 क्वेश्चंस. आई वाज वर्किंग इन अ न्यूज़पेपर, आई रोट द क्वेश्चंस ना, आई हैड ऑल द क्वेश्चंस रिटन. आई सेड डिड आई आस्क एंड शी सेड यस. आई सेड सर, I asked you all the questions about your movie. You chose not to answer them, sir. I could have left in 3 minutes, but it would be very disrespectful. What I regret is not leaving in 3 minutes.
मुझे वो 3 मिनट में उठ के चले जाना चाहिए था, क्योंकि बदतमीजी हमको आती नहीं है, बट जब बदतमीज लोग हो जाते हैं ना फिर अपने पे उतरनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि यार वो मौका ही नहीं देना चाहिए था। सेकेंड चीज, अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू किया है जिसके बाद मैं जिंदगी में आई डोंट वांट टू डू बिग बॉस इंटरव्यूज बिकॉज इट्स वेरी टॉक्सिक। Yeah, and What happened? I'll tell you now. I'm gonna speak about it. Ankita Lokhande was inside the Big Boss house, जो मेरी बहन जैसी है। पिछली वाला ना? अच्छा। हाँ। तो मैंने पूरे PR टीम को बोला था, कलर्स की टीम को, कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा इस बार जर्नलिस्ट वाले मीडिया राउंड में, क्योंकि अंडरस्टैंड शी इज लाइक माय फैमिली, Okay. सो इट विल नॉट लुक फेयर। Okay. तो मैंने उनको समझाया था, तो उन्होंने बोला कि नो नो यू मस्ट कम। तो उस बार ना 2 मीडिया राउंड्स हुए थे वो सीजन में। हर बार एक होता है, उस बार 2 हुए थे। पहले वाले में भी मैंने अपने कॉलीग को भेजा था जहाँ पे जिग्ना बोरा का था, सिर्फ जिग्ना बोरा के साथ उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया। फिर लास्ट वीक में उन्होंने बोला, और तब मैंने गलाटा जस्ट ज्वाइन किया था, मतलब लोगों को ज्यादा पता भी नहीं था, गलाटा पूरा 0 से स्टार्ट। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू डोंट कम देन वी कांट अलाउ एनीबडी एल्स, बिकॉज उनको तो मैंने रशिता अभी दूसरे वाले में आई है, अगर नहीं आती तो मैं बोलता कि उसमें दे वर फेयर फ्रॉम देयर पॉइंट, बट आई सेड लुक ऑकवर्ड एंड ऑल, लाइक नो इट विल नॉट, वी विल प्रॉमिस यू दैट। उसके बाद हम लोग गए एंड उन्होंने बोला कि गलाटा के लिए यू हैव टू कम अदरवाइज वी कांट। तो मुझे लगा कि चलो गलाटा के लिए कर लेते हैं, बिकॉज लोगों को पता होना चाहिए। वहां पे जाके अंकिता को भी पहली बार पता चला है, विकी को भी पहली बार पता चला कि मैंने कंपनी शिफ्ट कर ली, तो वो लोग रिएक्ट भी कर, हैं गलाटा कब हुआ? मैंने बोला हो गया। तो मैंने सवाल जिसके लिए किए, मतलब बोलते हैं ना कि आप 5 सवाल दे दो ताकि सबके सवाल आ जाए, ऐसा नहीं कि वो बोलते थे कि आपको क्या सवाल करना है हम बोले, आपसे वो सवाल पूछते हैं, फिर आपको बोलते हैं मैच कर करके सबका, कि चाहे ओवरलैप ना हो, तो आपको बोलते हैं कि ये सवाल आप कर सकते हो, इन दोनों में से आपको ये दोनों सवाल में से कोई भी करो। तो मेरा था ईशा के लिए। अब ईशा को उन्होंने उसी रात को एविट कर दिया। अब मेरा सवाल तो है नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला किसी को भी पूछो। मैंने जाके मनारा से सवाल पूछा, मनारा ने मेरे पहले एक सवाल में बोला कि आई रिस्पेक्ट विमेन, ओके। और तो मेरी किस्मत, मैं जब जा रहा था सेट पे तो मैंने एक वीडियो देखा था, कंपाइलेशन वीडियो ऑफ मनारा टॉकिंग बैड अबाउट सम विमेन कंटेस्टेंट्स। तो मैंने उनको पूछा कि आपने तो इनके बारे में ये बोला है, कि मेरा शायद टोन गलत हो गया होगा। सच में मैं मानता हूँ, चलो मैं मानता हूँ कि मेरा टोन वो दिख भी रहा है कि मैं गुस्से में पूछ रहा हूँ, मैंने गुस्सा था नहीं, पर शायद गुस्से में, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। ट्रोलिंग चालू हो गई, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया। मैं फिनाले पे इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे हमने भी फिनाले की इंटरव्यूज के लिए मैं गया हूँ, मेरे को सब बोल रहे हैं कि इट वाज सो बैड, डिड यू सी। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ट्रोलिंग के बारे में बोल रहे हैं। मेरे को बाकी जर्नलिस्ट ने बोला कि उसके बाद एक एपिसोड में दूसरे होस्ट को भेजा उन्होंने, और वो होस्ट ने अंकिता को एक चेयर पे बिठा के बोला, आपने तो अपने मीडिया वाले दोस्तों के साथ यू नो टू द ट्यून की आपका और मीडिया वालों का तो प्लान था, आपके खुद के मीडिया वाले आए थे, and now the whole nation is thinking it is a planned thing from Ankita and me that we had planned कि we'll go and you know I've gotten, my credibility was on the line and I decided I will never go Big Boss तो नहीं जाऊंगा because ये तो मैंने मुझे पहले से ही पता था, आज लोग, बट मुझे पहले से पता था कि ये हो सकता है मेरे साथ। Rubina, if I knew you before Big Boss, how can people expect me to be very fair and unbiased? भाई वो जो मीडिया वाले जाते हैं ना, जिनका कोई रिश्ता नहीं होता, जो बोलते भी नहीं कि हमारा रिश्ता है, वो भी बायस्ड है भाई। Of course. 40 के 40 लोगों का कोई ना कोई फेवरेट होता है, और कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं करता है। आपको इंटरव्यू देते वक्त पता चल जाएगा कि कौन आपके साइड में है, कौन आपके साइड में नहीं है एज अ कंटेस्टेंट। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको कोई पसंद आता कोई नहीं आता, और हमेशा आपका इंटरव्यू और कन्वर्सेशन पलड़ा उधर ही रहता है। एग्जैक्टली, सो आई एम तो हैप्पीली बायस्ड भाई। मैं तो बोलता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट से ज्यादा टॉक शो होस्ट हूँ। मैं टॉक शो होस्ट से सपोज टू, ह्यूमन नेचर है कि आपकी लॉयल्टीज रहेगी, और मैं हूँ लॉयल बंदा। मैंने जैसे बोला कि कोई आपके बारे में अगर कोई इंटरव्यू में मेरे सामने बकवास करे तो मैं उनको शट डाउन करूंगा। अब वो सही गलत, वो गलत आप लोग समझो, मेरे सामने मत करो, किसी और बंदे के साथ कर लो। वैसा ही अगर इफ यू आर टॉकिंग टू XYZ who has who supports another person you don't like, they will do the same with you. Absolutely. It's only fair. I got trolled, judged. These are the 2 things I regret, and I won't do that in life. I won't do that. नयन ने कुछ एक बातें एकदम मतलब गांठ मार दी है, ये करूंगा पर ये वाला काम नहीं करना है मुझे। हाँ, और एक चीज ऐसा है, विदाउट नेमिंग, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि कोई कुछ उल्टा पुल्टा हो, बट एक टाइम ऐसा था जिंदगी में जहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास पावर नहीं था,
तो कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे एज अ जर्नलिस्ट इवन इफ यू डोंट अग्री यू हैव हैड टू डू इट बिकॉज यू डोंट हैव द पावर. तो मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ ठान ली थी कि वो मेरे दिल और दिमाग ने ओके नहीं किया था. तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा जहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ, लिखूँ, बोलूँ जहाँ जो कॉन्शियस अलाउ ना मुझे- करे. हाँ, कॉन्शियस अलाउ ना करे और मुझे बोला गया हो कि ऐसा ही करना है. जिस दिन मुझे कोई भी कंपनी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, माय गलाटा इंडिया ओनर इज द नाइसेस्ट. शी इज लाइक मोर देन एन ओनर, शी टेक्स केयर ऑफ मी लाइक अ सिस्टर, आई फील समटाइम्स. बट शी ऑल्सो नोज इट, एवरीबडी नोज इट, दैट द डे आई फील इन एनी कंपनी कि मुझे कोई, देखो प्रेशर होता है हर कंपनी में, बिजनेस प्रेशर हर चीज़ का होता है. आप एक सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, सब कुछ मैं मानता हूँ, बट आपका दिल जिस चीज़ से ओके नहीं है, मैं वो नहीं करूँगा. wardrobe malfunction videos I'm not okay with. It will not go. I am not okay with troll videos. I think a couple of hours ago I saw wardrobe malfunction and it was just put up. One of the friend just picked up the other friend and placed her on the other side and the cameras were on and nobody even मतलब dared to filter it, snip it. और डालते भी कैसे हैं I लोग? was really heartbroken. I was really heartbroken. There was a company I left because of wardrobe malfunction videos. I will not name the company. But yeah. Again to the question of sensitivity and media responsibility. I think this cannot be sensation कैसे कर सकते हो आप? आपने गेस हू वाले वीडियोस देखे हैं? पैपराज़ी के जो आते हैं, हर पेज पे आ जाता है आज गेस हू. Guess who हमेशा it's taken from a back shot of women only. When have you seen a guess who of a man taken from the back? Men are always hiding like this. उनका ऐसा वीडियो आएगा जहाँ पे दाढ़ी वाड़ी है या कुछ दिख नहीं रहा, बट हर एक औरत का paparazzi guess who is from behind. And media has that responsibility to filter it. हमको भी आता है, but why putting an old picture and saying guess who? I understand. But ये Blur the features and say guess who. मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई इसमें, या फिर कोई ऐसे छुप रहा है, ऐसे कर रहा है, guess who समझ में आता है. जो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे डाला है समझ में आता है. मुझे ये वाला बिल्कुल समझ नहीं. अब मैं बोलूंगा तो इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि क्या बोलूं, मतलब it's sometimes it's just But Nayan, weird. I think if you and I we do not stir this up, nobody will. Everybody is enjoying and scrolling and maybe just going back and looking and checking again and then scrolling. उनको पता है कि ये I mean ethically, morally या फिर कहीं ना कहीं अपने conscience को disturb करता है, but it's okay. Like today it just came on my discover page and I saw, और फिर मुझे ध्यान आया कि evening में I have this conversation with you. This question was eating me up and this topic was eating me up and I wanted to come and speak to you here on air Yeah, and absolutely. understand that what goes on that side of the camera as well, that कि यार मतलब of course you can speak to on behalf of your comrades, you can speak on, तो ये responsibility is because media है तो कुछ भी उछल सकता है, या responsibility ऐसी है कि no, I'm a human being at the end of the day, let me see whether I can filter it or not. But it is everybody's mistake. The I one who's give that. clicking it I give is that. wrong. One who's putting it is wrong. One who's watching it is wrong. आज एक वीडियो, if you see, they have these kind of videos 70 million views. For what? 100 plus Yeah, मतलब million. for what? And क्या हो जाता है ना, कंपनी जो भी होते हैं कंपनी में अगर देखते कि ऐसे वीडियो को 70 मिलियन एक वीडियो पे आ गया तो वो बोलेंगे 4 वीडियो और डालो. आपके बाकी नॉर्मल वीडियो पे 3000 व्यूज आ रहे हैं, आप इस पे और डालो 4 वीडियोस. अब वो आपके ऊपर है एज अ टीम लीड. डू यू वांट टू, आर यू ओके विद इट? आर यू नॉट ओके विद इट? आई एम नॉट ओके विद इट. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इन एवरी इंडस्ट्री हैज क्लिक्स. You will understand this better because Rubina, you also face that in life, right? जहाँ पे आपको लगता है कि आपको difficult करार कर दिया गया है just because you raise your voice, even if it's for right reasons. It's the same. You think the media industry really likes me? Bullshit. They don't love me. They really despise me, and I am okay with it. I have always been a people's person till 2 years ago. I am not a people's person anymore. मुझे नहीं जाना किसी के साथ पार्टी करने, मुझे नहीं जाना किसी के साथ बताने कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है. I have heard the worst kind of shit
about myself from media people, educated people. Trolls होते हैं, समझ में आता है, but media कब से बन गई? Sophisticated trolls. मैंने बॉलीवुड बबल में जब ज्वाइन किया था तो मेरा पर्सनल ग्रोथ के लिए मैंने उनको बोला था कि मेरे जो एक्स्ट्रा काम होंगे वो मैं करूंगा, और दे वर वेरी काइंड इनफ टू accommodate that, which is why today I have grown personally in my career. I feel I always thank them for that. ऐसी बातें हुई है शमशेरा के इंटरव्यूज में, शमशेरा का इंटरव्यू चल रहा है रणबीर कपूर का एंड ऑल ऑफ दैट, मेरा एक दिन हो गया, दूसरे दिन में जो स्लॉट हुए हैं इंटरव्यूज, उधर 5 जर्नलिस्ट्स, कुछ मेरे उम्र के, कुछ मेरे उम्र के आसपास, कुछ मेरे उम्र से कम, ने बैठ के ये बात की है। तब मैं एक साउथ पब्लिकेशन गुलटे और बीबीसी हिंदी के लिए इंटरव्यूज कर रहा था, और दोनों के लिए इंटरव्यूज साइमल्टेनियसली कर रहा था बॉलीवुड में, ना अलाउ किया था। अब उनको लगने लगा कि यार नयन का तो ग्रोथ अच्छा है, तो एक जर्नलिस्ट ने अच्छे से बोला कि जो नयन ने किया है, I wish we all had that. We would have also seen a little bit of growth, which is a good thing that he has done for journalists. Like, you know, we should do different things. It's not like one avenue. तो किसी ने बोला सबको पता है उसको कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, I want to know कैसे मिल रहा है. And then educated people have laughed, smiled, and one of them, he's like a brother to me. He's come to me and told me, I don't want to name these people because you're very close to them, but you should re-evaluate your friendship with certain people on the field. And he just told me the incident. He never told me the name. But इंडस्ट्री इतनी छोटी है, नाम आ ही जाता है जब आप ढूंढने जाते हो. आपको क्या लगता है मैं अगर आपके बारे में बोलूंगा आपको पता नहीं चलेगा? पता चलेगा. तो मुझे जब पता चला, it was the worst thing. I have given those people chances even after that, Rubina. But they kept doing it. मुझे अभी लगने लग गया कि मुझे इंडस्ट्री तो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, एक्टर्स, PRs, most of the PRs, they like me. My own peers, I am not so sure about it. I feel they are either feeling that I don't deserve what I get, which they might be right in their own position, कि उनको लगता है कि यार हर बार जब कंपेयर करते हैं तो मतलब आपका अगर इंटरव्यू मैंने कर लिया, आपने 4 इंटरव्यू किए, आपके पीआर को कॉल ये नहीं आएगा कि आपके इन 4 के साथ क्यों किया. पीआर ने मुझे खुद बोला है कि नयन के लिए एक इंटरव्यू दे दो तो 10 लोग कॉल करके बोलेंगे कि हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ. तो ऐसे तो नहीं होनी चाहिए ना. मैं तो नहीं बोलता कि आपने इसको क्यों दिया, आप बोलो ना कि मेरे को क्यों नहीं मिला, नयन को क्यों मिला, क्यों बोलते हो. मैंने नहीं कब बोला कि कितने इंटरव्यूज मुझे नहीं मिलते हैं. There are bigger companies apparently who get it before me. I've never questioned उसको क्यों दिया. है उनके पास numbers, उनको मिलेंगे. तो मुझे वो क्लीकिश लगता है इंडस्ट्री. तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे भी क्लीक नहीं है, हमारे हम तो क्या बोलते हैं जो सिमिलर सोचने वाले लोग बहुत है. मैं हूँ, भावना है, आई थिंक मोहर बासु, रुद्रानी बोल के जूम में है, and there are many others who think alike, and we are all considered difficult. That's the bigger problem. That we are all difficult because we raise the But that's issues. their problem. हाँ, तो Your problem. मैं तो फिर भी अपने को कर कोई रहा हूँ. फर्क नहीं पड़ता है. मुझे उनके I am not running a popularity contest only. Absolutely. तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, good for you. You are not my friend. If you are not invited to my birthday party, and if I am not coming to yours, you clearly are not my friend. I can be very friendly with you, but you are not my friend. So please understand that whatever you say, good, bad, ugly, will not affect me beyond a point. It affected me that time. मतलब yes. वो टाइम ऐसा Maybe था for ना, you to understand कि किसको अपनी लाइफ में रखना है और किसको निकाल देना. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ना रुबीना, this is 2022, 2022 जुलाई के आसपास, I got diagnosed with costochondritis, like it's a inflammation of the chest muscles. Oh. So it a lot of stress triggers it because मैं तो कभी workout करता नहीं हूँ, तो उससे वो उस pull up से होता है muscle pain and all of that, and it feels like a cardiac pain. जब होता है ना, मतलब breathing also can give you, and my father has had a heart issue, cardiac issue. So my mother was very scared. So when we went and checked, it was costochondritis, and it was happening all at the same time. And then I got to know this, and then I was diagnosed with autoimmune the next month, July, October, September, October first week. तो इतना कुछ हो रहा था जिंदगी में उस दौरान ना, तो मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया था. मतलब मैं बहुत खुश हूँ. पहले मुझे बुरा लगता था, इसलिए मुझे मतलब मैं अफेक्ट हो जाता था. मैं आजकल मुझे बुरा नहीं लगता. आज आप मेरे को गलत बोलोगे ना तो ठीक है, गुड.
I don't react. I'm like, my friends also know. I'm zen. But if somebody who matters to me says something, then it affects me. Then I'll go think, मैंने ये गलत किया होगा. जैसे मैंने आज एक वीडियो डाला है जिनमें मैं किसी का नाम भूल गया, तो मुझे वो बुरा लगा क्योंकि उनको बुरा लगा, क्योंकि they are my friend. They have the right to feel bad. So वो मैं मेरे अंदर है. But अगर बाकी लोग जो मुझे बुरा पहले लगता अभी नहीं, बिल्कुल. Have you ever fabricated or manipulated a conversation or an interview because you wanted a pinch of salt or some masala or controversy to be automatically spilled and you played it smart and you know it but the other person that you are interviewing never knew it? No. मुझे एक्चुअली वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आई टेल यू, जब मुझे मसाला चाहिए होता है तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ. मतलब if I know that this person and that person is dating, they are very open. They might not be out in the open for public, but I am a very harmless journalist and they know that. Ki even if I know, sometimes I know everything and I don't write or I don't speak about it, right? So because they trust me, then I'll be like, then they'll be like, I'm single. I'm like, acha, really? So, but you're nudging it, yeah, no? मतलब मेरा वो रिएक्शन से लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो मतलब इसको पता है, ये झूठ बोल रहा है and all. But उस लेवल का नहीं कि you have to tell me and then there'll be a walk out or something like that. There have been difficult conversations where it has been difficult for me to sit through and it has shown on my face. And primarily Bigg Boss conversations where I feel like, oh my god, what all shit is this person saying and why is he or she speaking like this, because the world knows the truth. And Acha, you've had such conversations as well? अरे अब तो मैं, So you want to hint them? वो तो है, सबको पता है. रणवीर शोरे has behaved miserably with me in an interview where I have never put out, मतलब in my 10 years career I have never put out a story saying that I have felt uncomfortable, and in those many minutes, 9 minutes, 10 minutes, I felt my most uncomfortable. Whatever, matlab it was made out. Then I don't know what happened. It's called me Kiraya Ka Tattu. I don't know who's paying that kiraya to me. I wish they did. I could have bought a house if I had kiraya like that, but no. मतलब अगर मैं किराए का टट्टू हूँ किसी का, तो मुझे ये जानना है कि उनके बारे में जो इतनी अच्छी चीजें बोलते हैं, सब जानने के बाद तो ये ऐसा ये आज के समय में ऐसा भी होता है. People have the audacity of saying this. Yeah. He said it in a vlog. Wow. I thought कि off camera ये बात हुई है. After the interview he said it in a vlog. Somebody's asked me आपको उनके बारे में क्या बोलना है, तो मैं ऐसे किराए के टट्टू के बारे में लोग होते हैं किराए के टट्टू and all of that. And honestly, I was being very polite to him. I didn't want to name people. I didn't want to. He forced me. नाम लेके बात करो. नाम लो. आप 3 बार पूछोगे मुझे नाम लो, मेरी ऑडियंस क्या सोचेगी अबे मैं नाम नहीं लिया तो, कि आई हैव गॉन अनप्रिपेयर्ड एंड आई एम जस्ट बिकॉज मुझे नाम पता है, मैं नहीं ले रहा था आपके ही लिए. आपको नाम चाहिए तो लो. द मोमेंट आई टुक द नेम इज लाइक इंटरव्यू ओवर. हिम्मत नहीं है बैठने के लिए और नाम सुनने के लिए, तो फिर नाम लो करके why you being this man, toxic masculinity. I have dealt with a lot in my life personally, so it's okay. So that is one, and many actually. There was this interview with this Vada Pav girl. I was like, what all was she talking, man? But who is she? हाथ में iPhone लेके मैं गरीब हूँ बोलना. Oh my God. And then the manager has called and said, हमारे पास इंटरव्यू है, हम लोग डाल देंगे. सेम इंटरव्यू ही जा रहा है मेरे पेज पे, डाल दो. क्या अलग, क्या मैंने क्या काटा है भाई? जो तुमको मैंने पूछा वही तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग में, डालो. मेरे को फर्क नहीं पड़ता, डालो. And who are you, bro? I asked her. This is a very simple question. हम लोग बॉम्बे से हैं. बॉम्बे में वड़ा पाव कितने रुपए में मिलता है? 15 रुपए. आपने जाके बोला है कि आप महीने का 40 लाख रुपए कमाते हो, और समथिंग लाइक दैट, समथिंग टू द ट्यून ऑफ दैट, कि she sells 800 vada pav in a day, which is 50 rupees per vada pav, which is how much? 12 लाख रुपए आप महीने का कमाते हो, which is She sells vada pav in Delhi. in Oh, Delhi. you've not seen her videos, crying, fighting and all of that? She was in Bigg Boss. All these people are coming to Bigg Boss now. मतलब that is the never mind. Okay, sorry. See, मैंने Bigg Boss ना पहले कभी देखा है और ना ही उसके but अपने शो के बाद भी नहीं कभी देखा. अपना खुद का शो नहीं देखा. आपके शो के बाद Bigg Boss का वैल्यू भी तो देखना चाहिए ना, कि क्या क्या हुआ है.
I'm है? sorry, but never mind. That is. No, constant. please. I mean, I would No, like but to get. I don't agree with what is happening on the show. I don't feel right people are pushed. I feel चिल्लाते हैं और जो कुछ भी करते हैं आजकल मतलब ऐसा हो गया है मतलब वो माहौल हो गया है. चिल्लाना is right. Okay, चिल्लाना is okay for the right reasons. For the right reason. You know, correct. when there was Gauhar Khan and when there was you and all of that, and Shweta Tiwari and all of that, I feel like there was voice and the right voice. आपने आवाज Gautam Gulati. These are people who have played alone, screamed, shouted, but for the right reason, played fair. Oh, जबरदस्ती का shouting, screaming. Is और noise. एक तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हो गया है अभी जो भी है जिसके पास ज्यादा फॉलोअर्स वही जीतता है ऐसा भी हो गया है बट दैट्स ओके दैट इज स्टिल फेयर बिकॉज इफ यू आर गेटिंग एवरीबॉडी देयर फैंस विल कम सो इट्स नॉट अ थिंग बट ये इसलिए बिग बॉस मुझे इस साल तो मैं अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा ही नहीं है. बिग बॉस नहीं देखा फॉलो भी नहीं किया. पता ही नहीं कि क्या हो रहा है कैसा हो रहा है. चल. कौन कौन है पता है हाँ. बट क्या हो रहा है वही जो नॉर्मल आ जाता है ना वो हाँ, स्क्रोलिंग में हाँ, उतना हाँ, पता है बस बट अभी मेरी कंपनी में माय कॉलीग हैज जस्ट क्विट so if I have to cover Big Boss interviews I need to have a little basic understanding till I get somebody in my team. I don't want to but yeah I don't Prepare know. yourself. I think in next No, week or no, two please you will don't be say- called. I have abused her. I'm like Rashita you can't leave before this Big Boss season ends but yeah Okay. these are the things where बाकी मुझे याद नहीं है अभी what was the question but about वो क्वेश्चन तो रह गया अभी रहने दो हम आगे बहुत बढ़ गए बहुत आगे बढ़ गए yeah. Okay, one personality that you would love to sit for a conversation without any agenda or a film promotion or anything else and why? can I name 3 Please. Shah Rukh Khan I've had multiple conversations with him but never on camera क्योंकि मैं जब जर्नलिस्ट मतलब मैं जब न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट था तो मैंने बहुत बार बातें की है and he's the reason why I became a journalist. I was a Wow. huge Shah Rukh Khan fan since I was a child and I was a very good science student. I was going to become a doctor. Yeah, मैंने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया था सेकंड राउंड नहीं क्लियर कर पाया था एंड जो वेस्ट बंगाल जॉइंट होता है ऑलमोस्ट आई वाज लाइक गोइंग फॉर इट बट देन आई रियलाइज दैट शाहरुख खान के लिए प्यार मतलब मेडिकल से ज्यादा है तो मैंने जर्नलिज्म की सो शाहरुख सर बिकॉज आई थिंक वो एक ऐसे इंसान है ना वो एक्टर से ज्यादा इंसान बहुत अच्छे है मतलब एक्टर तो बहुत ही अच्छे है बट इंसान उससे भी ज्यादा अच्छे है मतलब दे से दैट नेवर मीट योर आइडल्स आई फील दैट इफ योर आइडल इज शाहरुख खान यू मस्ट मीट हिम बिकॉज यू विल ओनली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड लविंग हिम इवन मोर he makes you feel the warmest, the kindest, and he makes you feel like you're the most important when he's around I've you. heard this about him. Yeah, it is beautiful. Like I spend even 2 minutes that I met him during Zee Cine Awards after 5 years because he was not meeting anybody. 2 minutes के लिए मैं मिला and Rubina the first thing he has come he's hugged me and told me how are you beta and in the photo if you see my eyes have all watered and I'm like एंड वो ना गए और फिर मैं वैनिटी में गया और मैंने अपनी मम्मी को रात के 3 बजे कॉल किया एंड आई क्राइड बिकॉज दैट्स द इफेक्ट सेकंड इज रेखा जी Oh, eternal beauty. आई थिंक oh my god I would give my entire right arm left arm body heart kidney जो भी है अगर वो मेरे साथ एक conversation कर ले बट मुझे पता है कि वो नहीं करेंगी कभी because she doesn't like doing interviews But you never know. Just manifest. Just throw it out in 2025. And please God, listen to him. yeah because I feel like there are a lot of things I connect with her in life and I feel like everybody just speaks about Rekha ji's grace, Rekha ji's dignity, Rekha ji's you know vanity, the larger than life persona that she is. She has that goddess Yeah, persona. she is like a goddess. But a lot of people actually overlook the pain behind being Rekha. You know, what do I say? The loneliness behind being Rekha. And I'm not saying it in a way badly. I just feel like most people watching this video feel alone. But we are conditioned not to speak about it because it's not a great feeling. Correct. कोई बात नहीं करता मुझे लगता है कि उन्होंने इतने खूबसूरती के साथ उस इमोशन के बारे में बात किया है ना और हमेशा करती आई है कि मुझे लगता है कि if I sit with her because I also felt lonely at different parts of my life, right? So I feel like that is the conversation that I want to have with her because I want people to see Rekha ji the person.
And if you watch that Simi Garewal episode, which is my most, I go back to it and I keep rewatching it like multiple times. I feel like she speaks really well, not caged. You know, the alpha woman, Rekha ji. And the third person would be Sushmita Sen. I've had a wonderful conversation with her, but I want to have a longer conversation with her because I feel she's just brilliant. Brilliant. और बाकी जिनके साथ भी हुआ है ना दिल में, उनके साथ मैंने बात किया हुआ है. तो मैं खुश हूँ. बट ये तीनों के साथ मुझे बार-बार, I think for a video conversation I would love to have it. I'll keep it. मैं जिस दिन हो गया मैं सोचूंगा कि अच्छा मैं अब रिटायर कर सकता हूँ खुशी. नहीं ऐसा मत बोलो फिर क्योंकि तुम्हारी रिटायरमेंट और लंबी होती जाएगी because we would not want you to retire so soon. That's true. Yes. Thank you so much, Nayan. I mean, आज through this conversation, we have not just got to know what is the secret to a happy life, but how people in different arenas, especially in our show business, especially in Bollywood, especially the people that we look up, scroll up, and that we go and find about, we've gotten to have a glimpse through you because you've had the opportunity to understand them, know them, have a conversation. So thank you so much for getting all these personalities here in this conversation and sharing them with us. Thank you. So it means, मतलब हमारे लिए तो it's like a fun-filled, fulfilling conversation. Thank you so much, Rubina, because it is never, what do I say, like it always feels like home. Whenever I'm with you, around you, and मैं बार-बार यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, आज मैं ये बताना चाहता हूँ, please don't cut it. कुछ कट नहीं होता है. Actors बोलते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते. रूबीना दिलैक एक ऐसी इंसान है. जब मैंने एक चैट शो किया है, जिनकी वो फर्स्ट एपिसोड रही है, वो तो उन्होंने शेयर किया ही है. जब मुझे लगा है कि मेरा कोई चैट शो चालू हो रहा है, and I have sent that episode to her and requested her to push it maybe because it does give a push and it gives a huge push. Honestly, she's always done it, and not many people do that. You really do, and मैं आज भी याद रखूंगा कि you are the only first and the only person जिन्होंने एक इंटरव्यू करने के बाद, अक्सर हम गिफ्ट देते हैं, Rubina had got me a gift and I was like, oh my god, like for us it felt like, for people like me, I'm like wow, like ऐसा भी होता है. Your kindness is what keeps this show happy and your kindness is what makes you connect with people. But a lot of people will also find you, me and a lot of others difficult because we are fighting for the right reason. True. If we were meek and we didn't fight, they would like us a little more, but maybe we would not be happy with ourselves. So the first place to be happy is within your own self, and I think that you wonderfully do. And now that your kids are there and I have to come and see them, Yes. and meet them and play with them because oh my god, they're gorgeous. And before cutting, मैं भी रूबीना के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ आज. Yes. अच्छा सुनो मेरा सेगमेंट खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ. आखिरी के 3 मिनट रहे हुए हैं. आखिरी के 3 मिनट हम म्यूजिकली उसको क्लोज करते हैं अपने एपिसोड को. I give you emotion, you tell me a song that you relate to that emotion. ठीक है? Done. Happiness. Happiness would be, so I will say, तेरा मुझसे है आय हाय, सच में. नाता कोई. यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई. Sadness. माना के हम यार नहीं, लोता है के प्यार नहीं, माना के हम यार नहीं. That song. Pariniti Chopra, I love her for this song. प्यार. हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान, मेरी जमी बन गए. एक गाना for today's journalism. Today's journalism. Okay. रोला पे गया, रोला पे गया. With that, Rola, thank you so much, Nayan. Thank you so much. I enjoyed this conversation. I hope that I made you feel safe. Absolutely. When you had to Always. share your
thoughts, your ideas, your knowledge, your wisdom, your experience with us, because that's what matters to us. I always say to my guests, आपका समय सबसे ज़्यादा कीमती है और आपने ये जो हमें कीमती समय दिया है, that means the world to us. So thank you so much. I want to tell you that it doesn't matter समय कीमती हो, but you are more कीमती to me. So whenever you will need me, all my time is yours and your families, because both of you have been extremely kind to me. And you know, बार बार मैं यही बोलूँगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि रिश्ते नहीं बनते, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बेस्ट जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बट मेरे जो रिश्ते हैं ना, उस लेवल के पक्के रिश्ते इंडस्ट्री में जो रिश्ते हैं, नॉट जर्नलिज्म में, इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ, उनके लोगों के साथ, मुझे नहीं लगता कि अक्सर जर्नलिस्ट वो मैनेज कर पाते. तो वो मेरी ताकत है और मेरा वीकनेस भी. सो आई विल ऑलवेज से दैट व्हेनेवर यू नीड मी, for whatever you need me, you know that I will always be there with all my heart, because trust me when you say that time is the biggest parameter. I believe that if you love somebody, you have to make time no matter how busy you are, and you are that one person who's always made time. You've always Thank been you. in touch, you've always cared for me and people around me, and I've seen that, Rubina, and you're an amazing person, you're an amazing mother, you're an amazing actor, but you're just overall a amazing kind human being. That is why people feel safe around you and happy around you. Thank you so much. And that with this amazing feeling, I want to end the episode today. Keep glowing and keep growing. I will see you in the next episode of Kisi Ne Bataya Nahi, The Secret to a Happy Life.